Assalamu alaikum dear students, I am engineer Abdul Basit or we are in second part of this tutorial that is about the design of compression members. Okay, so we have already discussed a modified slenderness ratio for built up compression members और उसके बाद हमारे पास uh, how to perform this compression member design process. Okay, so ये पूरा procedure हमारे पास क्या है? So simply I am going through it. Okay, first of all this is their flow chart. Okay, कि कौन कौन से steps आपने follow करने हैं. And the first step is to calculate the load acting on it. Okay, so the load actually depends upon the end conditions as well. Okay, and the types of loads. So here it is, for example, we have dead load, live load. Okay, and we may have wind load, we may have snow load. So all the loads that are coming on the structure, उन सब को आपने कैलकुलेट कर देना है एंड देन डिवाइड सब डिवाइडेड इनटू लाइव लोड एंड डेड लोड क्राइटेरिया. ओके, तो क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग से करना है. एंड देन लेटरल लोड. ओके, लेटरल लोड हमारे पास इस मेंबर पे कोई लग रहा है, चूंकि हम कंप्रेशन मेंबर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें लाइव लोड डेड लोड इनके लिए अलग अलग एक प्रोसेस होना चाहिए, कैलकुलेट अलग अलग आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए. एंड देन जो आपके पास लेटरल लोड्स है वो आप कैलकुलेट कर लें. उसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज़ अबाउट calculate PU for the controlling critical load combination. Also find out the value of effective length factor. So effective length factors आप कहाँ से find out करोगे? PU तो आपने find out कर दिया है. ठीक है, लोड कम्बिनेशन से आपने जैसे कि डेड लोड लाइव लोड का कम्बिनेशन होगा 1.2 डेड लोड 1 प्लस 1.6 लाइव लोड. ठीक है, तो वो तो आपने कर लिया है. देन कमिंग टूवर्ड्स के एक्स के वाई एंड के जेड. ओके, दिस इज दैट इफेक्टिव लेंथ फैक्टर. ओके, इस पे आपने कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशंस. तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि एंड कंडीशंस हमारे पास इसको किस तरह इफेक्ट करती है. whether we have hand support on both the ends, so k will be equal to 1. ठीक है, if we have fixed supports on both the ends, so then k will be equal to 0.5. And if one end is fixed support, other is hand support, then k will be equal to 0.7. So all these values are given in the previous tutorials, also in the tables in LRB Design 8. Similarly आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो if there is no clear visible or you can say specific end conditions, then you can have that Jackson and Moreland chart as well for that calculation. तो वो आप यूज़ कर लोगे and you will calculate this thing. Assume slenderness ratio if column. अभी ये चीज़ जो है ये अलग से भी हम कैलकुलेट करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, assume slenderness ratio if column selection table are not to be used. ओके, सो slenderness ratio अगर हमारे पास column selection table अभी हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम्स गिवन नहीं है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ मेंबर एंड वी हैव टू सेलेक्ट इट. Okay, so then मेरे पास member है नहीं, so then we will assume the slenderness ratio, and that assumption will be based on this thing. Okay, that the slenderness ratio, this R is for slenderness ratio, will be equal to 125 almost for single angle, 115 for channel section, 90 for double angle or WO section. For built up members we will use R is equal to 70 and 35 for continuous brace in the lateral direction. जब हमारे पास bracing हो member में, so then this will be used. Okay, next step is to calculate the phi CFCR from the design table, design aid जिसमें table given है, or by employing the appropriate formula depending on the assumed slenderness ratio. तो phi CFCR हम कहाँ से find out करेंगे? Using this slenderness ratio. लेट्स से हमने एक सेलेक्ट किया 125 फॉर सिंगल एंगल हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सिंगल एंगल के लिए हमारे पास टेबल में अपना 5 CFCR गिवन होगा. ठीक है, उसी को हम स्ट्रेट अवे वहाँ से यूज़ कर लेंगे एंड दिस विल बी एन एज्यूम्ड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो है, सो एज्यूम्ड वैल्यू है. अब एग्जैक्ट इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे. कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो. तो जो भी हमने एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो के लिए प्रोसेस किया है उसके लिए अब हमारे पास कितना एरिया ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो हियर इट इज द फार्मूला. एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पी यू डिवाइड बाई 5 CFCR ए एस.
sorry, this is not a, this is assume. ठीक है, so here it is again 5C एफ सी आर, ये तो आपके पास गिवन होगा, पी यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, दिस विल बी एवोल्यूएटेड फ्रॉम द टेबल। इसके बाद आपके पास एरिया आ जाएगा। नाउ इस एरिया के मुताबिक अब एलआरएफटी डिज़ाइन एयर से जिस तरह हम टेंशन मेंबर्स को डिज़ाइन करते थे, उसी तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स लेने हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपने सेक्शंस लेने हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एरिया सेलेक्टेड उसका एरिया रिक्वायर्ड के तकरीबन बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। द सेक्शन मस्ट हैव अ मिनिमम पॉसिबल वेट, उसका मिनिमम सबसे कम इसका वज़न होना चाहिए। तो वही क्राइटेरिया है जो हमने यूज़ किया है ऑलरेडी फॉर टेंशन मेंबर्स, ठीक है। तो एरिया सेलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड एंड मिनिमम वेट का मेंबर आप सेलेक्ट कर लो। और दूसरा बी मिनिमम आप अपने ध्यान में रख लो दैट उसका जो जो मेंबर आप यूज़ कर रहे हो और जहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, सो दैट कनेक्शन member or that connection element should have a width of b minimum that is greater than all these three, ठीक है। फर्स्ट बी मिनिमम हमारे पास किस तरह चेक होगा, it should be greater than L divided by 40, then it will be checked again 3.25 D plus 26, ठीक है, and this will be for L is equal to 2 to 3 meter and is greater than 50 millimeters. So whichever is giving us the minimum value, that will be used, that will be checked against this thing, ठीक है। and D is the diameter, whenever there is D written here, so it refers to the diameter of the rivet, may be assumed equal to 15 if not given. सो अगर आपके पास D की कोई वैल्यू नहीं गिवन, कोई आपको पता नहीं है कि कितने बोर्ड्स कितने रिवेट्स किस डायमीटर के लगे हुए हैं, सो देन यू कैन एज्यूम 15 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द रिवेट। Maximum depth of the column section should generally not exceed 360 millimeter. So this is the maximum depth of the column, ठीक है, जो कि हमारे पास 14 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर डब्ल्यू सेक्शंस, ठीक है, ये एक एजम्पशन है। देन कैलकुलेट क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो। अब जो आपने मेंबर सेलेक्ट कर दिया है फ्रॉम दिस ट्रायल, ठीक है, 4-5 आपके पास सिलेक्शन आ गई है, आपने मेंबर टेबल से ले लिए हैं, फिर उस पर आपने ये चेक अप्लाई किया, ठीक है। इनमें से जो मेंबर आपने ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया है, सो देन यू विल हैव टू स्टार्ट द ट्रायल। देन फाइंड द अनसपोर्टेड लेंथ इन ईच डायरेक्शन, उस मेंबर का आप अनसपोर्टेड लेंथ फाइंड आउट कर लो, उस मेंबर का आप रेडियस ऑफ जायरेशन टेबल से ले लो, उस मेंबर का आप स्लेंडरनेस रेशो फाइंड आउट कर लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द अबव स्लेंडरनेस रेशो, चूँकि स्लेंडरनेस रेशो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जितनी ज़्यादा हो उतना उसके स्ट्रेंथ पे इफेक्ट एडवर्स होता है। सो दैट्स वाई आपको कम से कम स्लेंडरनेस रेशो रखनी चाहिए। तो अब डिज़ाइन आप किस चीज़ के लिए करोगे, कम से कम के लिए नहीं, you will have to design it for the worst condition and that is the maximum slenderness ratio, and this is the maximum slenderness ratio, ठीक है जी। here it is select spacing for, अब ये ए मैं कैसे सेलेक्ट कर लूँ, तो ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ दैट the individual slenderness ratio of the component between two stay-plate should be less than 75% of the overall slenderness ratio, ठीक है जी। सो इट इज़ 0 points, it should be less than a divided by ri should be less than 0.75. what is ri here, so these are the radius of gyration, so जिसमें minimum जो भी radius of gyration होगा वो हमारे पास यहाँ पे ri होगा, ठीक है। the selected spacing between the must be uniform and the stay plate should satisfy the modified slenderness ratio criteria, ये हमारे पास हो जाए। smaller a may be selected to reduce the modifiers, अब हर एक slenderness ratio हर एक r के लिए आप ये calculation कर लोगे, and then the a should be preferred for the smaller value, the smaller value should be preferred, ठीक है, और वो फिर हम आर एम में यूज़ करेंगे मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो में, ठीक है जी। however the number of the staplets in a member generally not exceed 2 or at the most 3, ठीक है। तो स्टेपलेट्स हमारे पास ज़्यादातर 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशो मॉडिफाइड फॉर द पोजीशन ऑफ द स्टेपलेट
फिर मॉडिफाइड स्लैंडरनेस रेशो फाइंड कर ले, जिस एक्सेस पे वीक है उस एक्सेस पे फाइंड आउट कर ले, और जिस पे ज़रूरत है उस पे फाइंड कर ले, और किस तरह कौन सा ज़रूरत वाला साइड होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिवाइज द क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशो आर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है, वो प्रोसेस रिक्वायर वो कर लो, और उसके बाद फिर आप चूज कर लो द चेक्स फॉर द लोकल इंस्टेबिलिटी। सो लेमडा which is equal to b divided by t, this should be less than or equal to lambda r, ठीक है जी। तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद फिर परफॉर्म मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो चेक, वो मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। दैट पी यू शुड बी that the slenderness ratio should be less than or equal to 200, ठीक है। सो दिस विल बी ओके, अदरवाइज आपको फिर दूसरा ट्रायल करना चाहिए दूसरे मेंबर पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। आर ग्रेटर देन 200 में अलाउ इन स्पेशल केसेस एज पर एएसआई रिकमेंडेशन। समटाइम हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर स्पेशल कंडीशन में हम 200 से ज़्यादा भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पी यू दैट load acting on the member should be less than that of the strength of the member, ठीक है, or you can say the strength of the member should be greater than the applied load, ठीक है। this is their demand, this is their capacity, so the capacity should be greater than demand, which is pu is less than 0.75 is for compression, this is that for जो हमारे पास फ्लेक्चर फेलेवर है उसके लिए है 0.75, this is that strength reduction factor compression के लिए 0.90, 0.87 is that again a factor, okay, this is 5 power of 5 square, और इसमें e और ये सब कुछ ये हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, और ये 0.87 ऑलरेडी आपको याद है दैट इज़ फॉर स्पेशल केस जब हमारे पास 0.44 FY से स्ट्रेंथ कम हो तब हमारे पास ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलो न्यूटन, सो दिस विल बी दैट होल इक्वेशन to be used for the determination of the capacity of the member. So if this capacity is greater than this load, your final selection should be the member on which this trial is being performed. Otherwise you have to repeat the process for the next member, and the trial should be repeated again, okay. If the next member also failed, so then you have to go for the next one, and then next one, finally you will get your answer, your required member, ठीक है। then that will be used and that will be safe against all the checks, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है additional factor of 0.75 is used to exceed the recommended limit of 200। अगर आपके पास 200 से लिमिट ज़्यादा हो जाता है तो ये 0.75 जो अभी मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ फॉर दिस AAC कंडीशन, तो फिर आपके पास 0.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर स्टिल सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आपका स्लैंडरनेस रेशो 200 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बढ़ भी जाए सो इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज 200 से ज़्यादा स्लैंडरनेस रेशो का कंप्रेशन मेंबर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ टू डू इट। KL divided by R square is less than or equal to, this is again a check for this condition, this is a check for this condition, इसमें सब कुछ आपको पता है, ग्रॉस एरिया और स्लैंडरनेस रेशो, ग्रॉस एरिया और कंप्रेसिव लोड, ठीक है। फाइंड 5 CFCR फॉर द टेबल इन द डिज़ाइन एड आर यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। एंड परफॉर्म कैपेसिटी चेक, दिस इज कैपेसिटी चेक, ठीक है। अदरवाइज रिवाइज आफ्टर फ्रेश कनेक्शन सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। और चेक फॉर स्ट्रेस रिवर्सल, दिस इज़ फॉर स्ट्रेस रिवर्सल, उसमें आप 3 केसेस है आपके पास, वो आप 3 केसेस में देख लो। इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट फॉर द टेंशन लोड चेक, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड फॉर टेंशन लोड चेक फॉर नॉर्मल केसेस व्हेन देयर इज़ नो स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, चेक फॉर द लोडिंग साइकिल, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ 2000 पर एनम से ज़्यादा हो 20,000 पर एनम से, सो देन इट इज़ लाइक उसके लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन स्टेप प्लेट्स आर लेसिंग्स, सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग लेक्चर ऑफ द नेक्स्ट वीक, or you can say on the in the week after the coming week, and that will be, and then we will design the connections as well, and this is your lab part, वहाँ पे ये कवर हो जाएगा, ठीक है।
Now coming to that alternate and easy method to select trial section, how to do it? Simply आप इसको कैसे कर सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड केयरिंग कैपेसिटी आप फाइंड आउट कर लो 5 CFC, ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ के लिए अगेंस्ट आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ठीक है, टेबुलेटेड इन द डिज़ाइन टेबल जो आपके पास होगा फॉर दैट एज्यूम्ड स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है, corresponding to the value of the effective length and that is this thing, ठीक है। उसके बाद आप वही प्रोसेस शुरू कर लो स्लेंडरनेस रेशो का, ठीक है। सो इसमें एक स्टेप आपका स्किप हो जाएगा, वो आप आसानी से फिर इसको कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द अगेन द सेम प्रोसीजर, फाइंड मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, सेलेक्ट द सेक्शन अगेंस्ट these unsupported this supported lengths, ठीक है, और जो आपका मेंबर होगा उसको आप देख ले, ठीक है। एंड देन फाइंड द रेशो ऑफ दैट स्लेंडरनेस रेशोस, ठीक है, सॉरी दैट रेडियस ऑफ gyrations, तो आपके पास एक रिलेटिव स्लेंडरनेस रेशो आ जाएगी। री एंटर द टेबल फॉर ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो आप इसमें फिर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट कर लो, ठीक है। रिवाइज द सेक्शन इफ़ नेसेसरी, अगर आपके पास ये सेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द रिक्वायर्ड एंड जो आपके पास आउटपुट होगा, सो देन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस, ओके। एंड दिस इज द टेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझा दूंगा हाउ टू डू इट। थैंक यू वेरी मच टिल नाउ, और नेक्स्ट वीक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल अबाउट दिस थिंग। ये प्रोसेस तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, लेकिन ये एक किस्म का यू कैन से जनरल सी डिस्कशन थी, जिसका आपको एक आइडिया तो मिल गया है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने हैं, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आपको डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स में, कंप्रेशन मेंबर्स में, सॉरी, तो ये टेबल कैसे यूज़ करेंगे एंड हाउ टू यूज़ दैट टेबल ऑफ द स्लेंडरनेस रेशोज़, ठीक है, वहाँ से पी क्रिटिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे पास एक टीडियस जॉब है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे, एंड वी विल वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये एक किस्म का ये जो टेबल है, दिस इज़ अ बेट डिफरेंट वन। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो आपका इंटरपोलेशन प्रोसेस है, हाउ टू इंटरपोलेट वैल्यूज़, ठीक है, बिटवीन ईच अदर, टू वैल्यूज़ के दरमियान आप इंटरपोलेशन कैसे करते हो, तो ये आप प्रोसेस ज़रा आप रिपीट कर लो अपने लिए, इंटरपोलेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, सो दैट वी शुडंट वेस्ट एनी टाइम ऑन दैट इंटरपोलेशन प्रोसेस अगेन रिपीटिंग इट, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, अस्सलाम वालेकुम।